Sameer Wankhede and 2 other officials who've been targeted. But Yasha, we are also learning that 3 of those attackers have been arrested by the police. What has happened on that front? Have they revealed other names also of the attackers who were involved with them? Are there more arrests that could likely take place today itself? So, while these 3 arrests have been made, there will be further round of questioning that will take place with these people. There will be charges that will be levied against them. And as far as the arrest goes, they will again be produced before the magistrate. Whereas the other people who are concerned, there will be a round of investigation that will follow, wherein once the identification of these people who've, among the 56 people who've attacked the NCB team is known, even charges will be levied against them, even they'd be arrested. So right now the entire procedure of understanding who all were a part of that entire team is going on by the Goregaon police, as we know, and they're going further and out of their way to understand as to who all were involved, which is the team of those 56 people, and how are they linked to this particular drug peddler through whom they came together and attacked. Now, like as they were trying to shield this particular drug peddler while the NCB team was about to go there to raid their place. So the entire investigation will go further in its due course. Like we know that there'll be these people who will be questioned. And these people first will be identified. It may not be one drug peddler. It might be a deep-rooted conspiracy of those who are very intricately involved in this drug nexus, and this may have been a very planned attack that they have carefully targeted these officers, that too at a time when they were conducting a raid. They were on duty. Alisha is picking up more details. Alisha, what have you picked up from your sources in the police who are now investigating into this case, rather investigating into this attack of those who've been arrested, what they've revealed of who is responsible for this attack? देखिए, सबसे पहले तो अगर इंसिडेंट को लेकर बात करें, खुद हमारी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से बात हुई है और इसी बात को लेकर उन्होंने ये जो इंसिडेंट को लेकर बातचीत की, जो जानकारी उन्होंने दी है कि बीती शाम में करीबन 6 से 7 बजे का समय था, जहां पर वो गोरेगांव के इलाके में पहुंचे थे। एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जहां गोरेगांव में ड्रग पेडलर जो है, जिसके पास काफ़ी मात्रा में कहीं ना कहीं जो है नशीली पदार्थ है, उसी पदार्थ को बरामद करने के लिए, सीज करने के लिए खुद वहाँ पर समीर वानखेड़े और अन्य 5 ऑफिसर जो एनसीबी के वो उस जगह पर मौके पर पहुंचे थे। उस जगह पर पहुंचने के बाद जो है उस ड्रग पेडलर को तो पकड़ा गया था, पर साथ ही जैसे ही वो नशीली पदार्थ को लेकर जो बरामद की जाने वाली थी, उसी समय कुछ शख्स है वहां पर, कुछ लोग थे जिन्होंने 50 से 60 लोगों को वहां पर बुलाया। वो पूरी मॉब वहां पर इकट्ठा हुई। इकट्ठा होने के बाद वहां पर न कि सिर्फ एनसीबी के कार्रवाई को रोका गया, पर साथ ही जो एनसीबी के अधिकारी है, जिसमें खुद समीर वानखेड़े मौजूद थे, उन पर अटैक किया गया, उन पर हमला किया गया। आखिरकार मौके पर वहां पर गोरेगांव की पुलिस पहुंची, जिन्होंने सबसे पहले उस भीड़ के बीच से खुद पहले एनसीबी के जो ऑफिसर्स है, 6 के 6 ऑफिसर, जिसमें समीर वानखेड़े भी खुद मौजूद थे, उस ऑफिसर्स को बाहर निकाला गया। पर साथ ही उनमें से 2 ऑफिसर जो है, 2 अधिकारी जो है, जो कि घायल हुए, उनको पास के अस्पताल में लगाया। फिलहाल कंडीशन जो है वो बेहतर है। पर जैसे ही वहां से उस भीड़ से निकलने के बाद सबसे पहले गोरेगांव पुलिस स्टेशन पर गए। पुलिस स्टेशन पर जाकर एफआईआर दर्ज की उस मॉब के पीछे, और साथ ही जो ड्रग पेडलर को पकड़े गए थे, जिसका अब तक आइडेंटिफिकेशन जो है वो एनसीबी की ओर से रिवील नहीं किया गया है। पर साथ ही जो एफआईआर, जो कि सेक्शन 353 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, और इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। और ये अरेस्ट जो है वो एनसीबी के अधिकारी की ओर से जो पहचान पत्र दी गई थी, जो आइडेंटिफिकेशन दी गई थी, उसी के तहत अरेस्ट की गई है। पर इतना ही नहीं, पर साथ ही और लोगों को भी जो डिटेन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो सामने आ रही है कि पेडलर कैरी मंडली करके जो मंडली है और उसी के जो साथी है, जो उनके साथ में रहते हैं, उन सभी को हिरासत में लिए उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करके उस पर उनकी कार्रवाई की जाएगी, उस पर गिरफ्तारी की जाएगी। पर खुद
जो है समीर वानखेड़े उस मौके पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं अब सवाल ज़रूर खड़े उठते, क्योंकि जो एनसीबी हमने देखा कि लगातार, फिर चाहे दिन हो या रात हो, लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हीं को रोकने की कोशिश की जा रही थी। समीर वानखेड़े का तो साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो कार्रवाई इन ड्रग पेडलर्स और ये जो मॉब वहाँ पर मौजूद थे उनकी ओर से रोकी गई है, पर ज़रूर जल्द से जल्द उस ड्रग पेडलर को भी पकड़ा जाएगा और सारे लोगों के आइडेंटिफिकेशन, जितने भी लोग उस जगह पर उस मौके पर मौजूद थे जिन्होंने एनसीबी अधिकारियों को हमला किया है, उन सारे लोगों का आइडेंटिफिकेशन देने के बाद इस पर कार्रवाई ज़रूर की जाएगी और सभी को हिरासत में लिया जाएगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और इस पूरे मदद यानी एनसीबी और गोरेगांव पुलिस स्टेशन की ओर से जो जॉइंट कार्रवाई कहीं ना कहीं पर की जा रही है, इस पूरे मामले की जांच अब गोरेगांव पुलिस स्टेशन की ओर से की जा रही है। पर खुद समीर वानखेड़े ने ये जानकारी दी है कि बीती शाम में जहाँ पर गोरेगांव के उस इलाके में जहाँ इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी कि इस जगह पर ड्रग पेडलिंग होती है और वहाँ पर ड्रग्स बेचा जाता है, और उसी मौके पर वो पहुंचे थे, और जबकि ड्रग पेडलर के पास भी पहुंचे वहां पर, और कुछ नशीली पदार्थों को लेकर जब वो बरामद की जा रही थी तो उसी समय उस शख्स ने कोई वहां पर मौजूद थे जिन्होंने 50 से 60 लोगों को उस जगह पर बुलाया। उस जगह पर पहुंचने के बाद उन सारे अधिकारी यानी 6 अधिकारी जिसमें समीर वानखेड़े भी मौजूद थे, उन सारे अधिकारियों का पर उनके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद वहां पर उनसे जो नशीली पदार्थ खुद जो बरामद की गई थी एनसीबी की ओर से, वो तक वापस से छीना गया है। इस पूरे एक्शन को लेकर फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। खुद बयान समीर वानखेड़े और अन्य जो ऑफिसर है और उनके आइडेंटिफिकेशन के तौर पर जो उनके बयान तो दर्ज कर लिए गए हैं। इस पूरे मामले में अभी 3 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के कोई लोग हैं जो कि कैरी मंडली के नाम से जो मंडली है, जो लोग हैं, उनको हिरासत में ली गई है, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। पर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो गोरेगांव पुलिस स्टेशन की ओर से जारी है। All right, Alisha, we trust you to keep us ahead on this story and track every single detail. Thankfully, the 2 officers who were injured in this attack are now stable, and that's the confirmation we've got. Their condition is stable. We'll come back to you, Alisha and Yasha, for more on the same. For the moment, we step into a very short break.